PDP صدر محبوبہ مفتی نے القاعدہ کی طرف سے ہندوستان میں حملہ کرنے کی دھمکی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ محبوبہ نے اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی دھمکیوں سے BJP حکومت کو جھوٹ کا پرچار کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہندو خطرے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ تبصروں پر ان کے ترجمانوں کے خلاف صرف مسلم ممالک کے دباؤ پر معطل کرنے کے بجائے سخت کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ اس سال میلہ کھیر بھوانی میں آنے والے عقیدت مندوں کی کم تعداد کے بارے میں پوچھے جانے پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ اقلیتوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد کشمیر میں اس وقت خوف اور افراتفری کا ماحول ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حالات میں بہتری آئے گی اور عقیدت مند ایک بار پھر پہلے کی طرح کھیر بھوانی آئیں گے۔ BJP کے اسپوکس پرسن جو ہے جنہوں نے جس طرح سے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے جو پوری دنیا کے اندر جو ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، اس سے پورا جو ہے قوم جو مسلم امہ ہے وہ لرز پڑے ہیں، وہ غصے میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، کیونکہ ہم لوگ کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں مگر ان کے بارے میں نازیب الفاظ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے کوئی قدرتی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ نماز پڑھتا ہو نہیں پڑھتا ہو، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، مگر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس میں وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں اس قسم کے الفاظ آنا، اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ جو BJP ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اس قسم کا جو ہے انکریجمنٹ کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کے لباس کے خلاف، ان کی زبان کے خلاف، وہ کیا کھاتے ہیں اس کے خلاف، وہ کیا پہنتے ہیں اس کے خلاف، تو ان سب چیزوں کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو اب جو القاعدہ کی ایک تھریٹ ہے اس سے مجھے یہ بھی ایک ڈر لگتا ہے کہ جو انہوں نے، مجھے نہیں معلوم کون سی کہاں تھریٹ دی ہے، مگر جو BJP کا ایک بنا تھا، ایک نیریٹو چلا تھا کہ ہندو خطرے میں ہے، تو آج ان کو جو القاعدہ نے تھریٹ دی اس سے ان کو اور بھی ایک بہانہ مل جائے گا، دیکھو جی آپ خطرے میں ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور ان کو تو چاہیے تھا کہ یہاں کے لوگوں کے جذبات کی قدر کر کے اپنے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے، ان کو جیل میں ڈالتے، مگر ان کو انتظار کرنا پڑا کہ جب تمام جو ہے اسلامی ممالک جب انہوں نے غصہ دکھایا، خاص کر غصے سے زیادہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم انڈین گڈس کا بائیکاٹ کریں گے، تب جا کے ان کے ہوش ٹھکانے لگے، اور انہوں نے جو تھوڑا بہت ایکشن، میں نہیں سمجھتی ہوں کوئی زیادہ ایکشن لیا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا علم ہے کہ جب اخلاق اور دوسروں کو لنچ کر کے مارا گیا تھا تو ان کی ایک منسٹر نے آ کے بعد میں جب وہ جیل سے ضمانت پہ رہا ہوئے تھے تو ان کو مالا پہنائی تھی، ان کا بڑا ویلکم کیا تھا۔ تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ لوگ جو ہے، یہ جو اسپوکس پرسن ہے ان کی، اس کا بھی اسی طرح سواگت کریں گے ایک بار غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو۔ پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے ملک میں اچھا نہیں، اس سے ہمارے ملک کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ کشتواڑ میں بند رہا BJP کی معطل کردہ ترجمان نپور شرما کی حمایت میں مقامی BJP لیڈر اور دیگر کے فیس بک پوسٹ کے خلاف بند رہا۔ کشتواڑ پولیس نے نپور شرما سے فیس بک پر اظہار یکجہتی کرنے والے 3 افراد کے خلاف FIR درج کی ہے۔ پولیس نے لوگوں کو انتباہ دیا کہ کمیونٹی میں منافرت پھیلانے کی کوشش نہ کریں ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کے مطابق BJP YM یوتھ لیڈر، یکجٹ لیڈر اور ایک نوجوان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے اور معاملے کی مزید جانچ جاری ہے۔ مرکزی حکومت کشمیر میں علاقائی سیاسی جماعتوں کو اپنے سب سے بڑے دشمن کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ بات PDP کے صدر محبوبہ مفتی نے اپنی رہائش گاہ پر کہی۔ محبوبہ نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ تمام ہم خیال سیاسی پارٹیاں مل کر الیکشن لڑیں تاکہ BJP کو شکست دی جا سکے۔ کئی سرکردہ شہریوں اور تاجروں نے آج ایک تقریب کے دوران PDP میں شمولیت اختیار کی۔ محبوبہ نے پارٹی میں ان کا استقبال کیا۔ جہاں تک میرا ماننا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ہمارے اوپر بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے، نہیں کھڑے ہوں گے اکٹھے، الیکشن کا سوال نہیں ہے، میں ادروائز بھی بات کرتی ہوں، تو ہمارا وجود مٹانے کے در پہ ہیں لوگ۔
تو اس لیے ہمیں اکٹھا ہونا ضروری ہے. باقی فاروق صاحب نے ایسا کیوں کہا ہے وہ اس کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں. اور الیکشن کا جہاں تک سوال ہے, جب ہوں گے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے الیکشن کے لیے ایٹ اینی ٹائم تیار ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو دشمن ہے اس وقت مرکزی سرکار کا ہے وہ یہاں کے مین سٹریم پارٹیز ہیں, خاص کر اس میں پی ڈی پی کا نام جو ہے صف اول ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں اس وقت ہم بہت بڑی مصیبت, بہت بڑے ایک برے دور سے گزر رہے ہیں, اور ایسے میں ہم سب کو اکٹھا ہونا, اور اس میں چونکہ پی ڈی پی ایک جماعت لگتی ہے ان کو کہ جو اس وقت فور فرنٹ پہ ہے, مقابلہ کر رہی ہے, تو ایسے میں مجھے خوشی ہے جیسے آج اقبال ترنبو صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے. یہ بہت ہی ان کا اپنا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اور ان کے والد بہت ہی جو ہیں بڑے اور بڑے مشہور رہے ہیں, یہاں ایک سوشل ورکر بھی رہے ہیں. تو یہ آئے ہیں, اور اسی طرح کے لوگ دن بدن جڑ رہے ہیں, جو بڑا مشکل ہے ان کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ڈی پی جو ہے نشانے پہ ہے. تو اس کے باوجود ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنا یہ قابل فخر ہے میرے لیے. پکھرپورہ بڈگام میں ایک مرتبہ پھر سے کشمیریت اور انسانیت کی مثال دیکھنے کو ملی. یہاں آج مقامی مسلمانوں نے ایک غیر مقامی ہندو کی آخری رسومات ادا کی. اس اقدام کی ہر جانب ستائش ہو رہی ہے. دراصل پکھرپورہ بڈگام میں ایک غیر مقامی شخص کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی تھی. اس کے بعد مقامی لوگ سامنے آئے اور اس کی آخری رسومات کے لیے درکار ہر مدد اور تعاون فراہم کی. فوت ہوئی شخص کی شناخت خورشید خوشپور ارریا بہار کے لکھن کے طور پر ہوئی ہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ موجودہ وقت میں ملک میں جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں اس طرح کا اقدام قابل ستائش ہے. ایل جی منو سنہا نے سامبا میں ملیٹنٹ حملے میں ہلاک ٹیچر رجنی بالا کے گھر والوں سے ملاقات کی. رجنی بالا کو ملیٹنٹوں نے حال ہی میں کلگام کے گوپال پورہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. ایل جی نے رجنی بالا کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی. رجنی بالا کے شوہر راج کمار نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے ایل جی کو ایک میمورنڈم پیش کیا. کمار کے مطابق انہوں نے اپنی پوسٹنگ جموں میں کرنے, ان کی بیٹی کو سرکاری نوکری فراہم کرنے سمیت دیگر مطالبات کیے. راج کمار نے اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی مانگوں کو جلد پورا کیا جائے. پیلے رکھی اور باقی انہوں نے پوچھا کہ بہت دکھ کی گھڑی ہے آپ کے لیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ کہا, ہمیں ایشور کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی بھی آپ کو ضرورت پڑے یا کبھی بھی کوئی بھی آپ ڈائریکٹ ہم سے بات کر سکتے. یہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ ہم سے بات کر سکتے. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان کا, تھینک یو ان کا. وہ آئے اور انہوں نے ہماری اپیلیں ایکسیپٹ کی. میں بہت بہت شکریہ ان کا. کیا امید رکھتے ہیں کہ ان کا مجھے پورا امید ہے ان پہ, پوری امید. وہ ایکسیپٹ کریں گے ہماری اپیلس. جینون بھی ہیں, تھوڑی بھی ہیں, اور ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے میری. وارڈ نمبر 12 چیک منگا سامبا میں صفائی ستھرائی کے دوران کافی مقدار میں ہتھیار ملے. یہ ہتھیار زنگ آلودہ ہو چکے تھے. میگزین, موٹر شیل, کاربین اور دیگر مواد بھی ملا ہے. بعد میں پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہتھیار اپنے قبضے میں لیے. بتایا جاتا ہے کہ پرانے کنویں کی صفائی کے دوران یہ ہتھیار ملے ہیں. ہتھیار زنگ آلودہ ہونے سے لگ رہا ہے کہ یہ کافی وقت پہلے یہاں پھینکے گئے ہیں. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ہتھیاروں کو تباہ کیا ہے. میونسپل کونسل بانڈی پورہ آج پہلی بار بی جے پی کے نام ہوئی کانفرنس ہال بانڈی پورہ میں آج ہوئے چناؤ کے دوران بی جے پی کے بشارت احمد نجار کونسل کے صدر جبکہ نصیر احمد میر نائب صدر منتخب ہوئے ہیں. اپنی جیت پر بی جے پی نے خوب جشن منایا اور آتش بازی کی. اس کے علاوہ پارٹی کے حق میں نعرے بازی کی گئی. نو منتخب صدر بشارت احمد نجار کا کہنا تھا کہ وہ بانڈی پورہ میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع کریں گے. بانڈی پورہ کی تواریخ میں پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی میں میونسپل کونسل بانڈی پورہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. یہ پارٹی کے مبارک ہے اور ایک پارٹی کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ محنت رنگ لائی ہے. اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے, جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے, جہاں کام رکا ہوا ہے وہاں سے ہم دوبارہ کام شروع کریں گے. اور بانڈی پورہ کو جائز بھی نظر بنانے کے لیے ہم جہد کوشش کریں گے.
بانڈی پورہ میں میونسپل کونسل کے صدر اور نائب صدر کے چناؤ کے دوران سابق صدر خورشید احمد گنائی اپنے ساتھی کونسلروں سمیت پولنگ میں حصہ لیے بغیر پولنگ ہال سے باہر چلے گئے۔ سابق صدر نے کونسل کے چیف ایگزیکٹو افسر ولی محمد پر چناؤ کے دوران جانبداری سے کام لینے کا الزام لگایا۔ ادھر میونسپل کونسل کے سی ای او نے سابق صدر کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ہار دیکھ کر سابق صدر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ سیکرٹ بیلٹ باکس ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ اوپن بیلٹ باکس اب چیف ایگزیکٹو افسر نے اپنے پاس رکھا، کیا واقعی یہ جمہوریت ہے؟ اس کے لعنت ہے ایسے افسروں کے لیے جن لوگوں نے اتنی بے ایمانی کی ہے۔ ہمارا الیکشن بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا الیکشن اس وقت چیف ایگزیکٹو افسر کے خلاف چل رہا ہے، وہی پارٹی بن رہا ہے ہمارا۔ اس نے دڑا کر اس نے ہمارے پاس اتنا ثبوت ہے، ہم احتجاج میں باہر نکلے، بتاؤ ہم لوگ کیا کریں گے؟ میرا ایک اصول زندگی میں رہا ہے کہ میں جب حق جو ہے حق کا ساتھ دیتا ہوں، اب کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ سیدھی بات ہے، جب کوئی گیم ہارتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ باقی رہی بات اگر بھائی پہ ہوگا میں پھر بھی حق کا ساتھ دیتا ہوں۔ یعنی جو انہوں نے الزام لگایا کہ آپ اس الزام کی تردید، وہ سراسر بے بنیاد ہے، سیدھی بات ہے۔ یہ تو سیدھی بات ہے، جب کوئی الیکشن ہارتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ فوج کے چمن آر نے نوشہرہ وار میموریل پر ایک تقریب کے دوران 1948 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 8 جون 1948 کو 120 کے قریب عام لوگوں اور فوجی جوانوں نے پاکستانی حملہ وروں سے لڑتے ہوئے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ آج منعقدہ تقریب پر 13 سیکٹر کے کمانڈنٹ نے شہیدوں کو یاد کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ کمانڈنٹ کو سلامی پیش کی گئی۔ شہیدوں کے اہل خانہ بھی موجود تھے، انہوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج ہر سال ان شہیدوں کو یاد کرتی ہے۔ حضرات اور دوسرے جو یہاں پرٹیکولرلی آرمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اعلیٰ آفیسران یہاں موجود تھے، سویلین تھے اور ایکس سروس مین جو تھے، انہوں نے اور شہیدوں کی قربانیوں میں روشنی ڈالی اور یہ یقین دلوایا کہ آپ اس قسم کی جو یہ پروگرام ہوتے ہیں آنے والی نسلوں میں ان چیزوں کو جو ہے اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ 47 کے بعد کچھ سمے یہاں کے یہ سویلین لوگ تھے وہی پروگرام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد یہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آرمی کو بھی دکھایا جائے اور جو آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا بھی نام یہاں لکھا گیا ہے، اور آرمی سویلین سب مل کے یہاں پہ کام کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ۔ وائٹ نائٹ کور کی گولڈن جوبلی اور ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کی یاد میں ویر اسمرتی یاترا کا آغاز کیا گیا۔ ایک بائک ریلی جو 6 دنوں میں 600 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کے ان بہادر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرے گی جنہوں نے اعلیٰ قربانیاں دیں۔ فوج کے 9 جوانوں اور 6 عام شہریوں پر مشتمل وائٹ نائٹ رائڈرز نے قلعہ درحل نوشہرہ میں واقع شہید گڑھ وار میموریل سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ بریگیڈیئر اجے شرما نے سابق فوجی شری 75 سنگھ کے ہمراہ بائک ریلی کو جھنڈی دکھائی۔ بائک ریلی کے شرکا پیر پنجال کے جنوب میں تمام جنگی یادگاروں کا دورہ کریں گے اور راستے میں سابق فوجیوں اور ویر ناریوں سے بھی ملیں گے۔ کور کی سورنم جینتی کے اوسر پہ ہم ایک موٹر سائیکل ریلی کا آیوجن کر رہے ہیں جو سارے کے سارے اسمرتی استھل جو 16 کور زون میں ہیں اس سے ہوتی ہوئی گزرے گی اور ہمارے شہیدوں کو شردھانجلی دے گی۔ یاترا کا شبارمبھ ہوا ہے اور یہ یاترا 12 تاریخ کو نگروٹا میں سماپت ہوگی۔ بارامولہ میں بارڈر بٹالین کے لیے کانسٹیبل کی اسامیوں کے لیے بھرتی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع پولیس لائنز میں بھرتی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ خاصی تعداد میں سرحدی علاقوں کے نوجوانوں نے حصہ لیا۔ نوجوانوں میں کافی جوش دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے انہیں روزگار کے علاوہ قوم کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سرحدی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے کو اب پورا کیا ہے۔ کانسٹیبل جو بھرتی جو ہو رہی ہے یہ بارڈر بٹالین کانسٹیبل کی بھرتی ہو رہی ہے۔ اس کا ہم نے جو فارم سبمیشن ہوا تھا وہ 1.5 مہینے پہلے ہوا تھا، اب اس کی ڈیٹ جو نکلی آج ہمیں ریس ہو رہی ہے، اس لیے ہم پورے جوش تو ہیں اس ٹائم، تب جیسے وہ تھوڑا سسٹم اس ٹائم رکا ہوا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا کوالیفائی۔ شوق ہے پولیس میں جانے کا؟ خیر مقدم ہے۔ ماتا کھیر بھوانی تہوار کے سلسلے میں آج کپواڑہ ضلع کے ٹکر کھیر بھوانی مندر میں بھی عقیدت اور احترام کے ساتھ تقریب کا اہتمام ہوا، لیکن ٹارگٹ کلنگز کی وجہ آج کی تقریب میں کشمیری پنڈتوں کی کم تعداد مندر میں دیکھنے کو ملی۔ اس دوران انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے تمام تر انتظامات کیے تھے۔
डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने मंदिर में इंतजामात का जायजा लिया। दिन भर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ तैनात थे। कश्मीरी पंडित ज़ायरीन का कहना था कि कश्मीर में टारगेट किलिंग्स बंद होनी चाहिए ताकि एक बार फिर से अमन और खुशहाली का माहौल कायम हो सके। एक कश्मीरी खातून ने जज्बाती अंदाज में कहा कि जब दोनों का खून एक ही रंग का है, फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर फसादात की कोई गुंजाइश नहीं है। ही कोई आदमी कर रहा है, इतने गिरे हुए कम से कम मैं नहीं समझती हूँ कि मुस्लिम भी है, वो भी समझते हैं कि खून की कितना महत्व है। अगर ऐसी बात होती तो हम दोनों का खून अलग अलग होता। जब खून रेड है तो आप उसकी कम से कम कदर कर दीजिए। खून बहना बहुत, उस माँ से पूछिए जिसका बेटा जाता है, उस बहन से पूछिए जिसका भाई जाता है, उस पत्नी से पूछिए जिसका पति जाता है। अगर इस चीज़ का आप करेंगे, मैं यहाँ की जो कम्युनिटी हूँ बस उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बाहर आइए, अपनाइए और आप ही इसका इनिशिएटिव लीजिए। क्योंकि ये बदकिस्मती की वजह से इस वक्त जो कि यहाँ पर हम कमी महसूस कर रहे हैं, थोड़ा तादाद कम है, टारगेट किलिंग्स की वजह से ऐसा हुआ। तो सरकार को चाहिए कि इस पर थोड़ा अच्छी तरह ध्यान दें ताकि हम एक ही मिली जुली हमारी तहजीब एक ही तमद्दुन है कि कश्मीरियत का क्या नाम है। पंडितों के बगैर हमारा कश्मीरियत थोड़ा अधूरी है, ये हमारे जिस्म के पार्ट है। ये नहीं कहती हूँ कि हिंदू मर रहा है, उसमें सारे मर रहे हैं, टारगेट किलिंग में बड़े लोग मर रहे हैं। अब मैं ऐसे यहाँ के अपने भाइयों से विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप ये प्लीज़ एंड प्लीज़ ये किलिंग बंद करो। हम भी अगर इनोसेंट लोगों को बोलेंगे बस आप उसको मारोगे उससे आपको शांति मिलेगी, उनको पता नहीं है। हाँ, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, हमारे पॉलिटिकल लीडर इनको अपने मफाद के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं और वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो। मेला खीर भवानी की तकरीबात के सिलसिले में स्थापन वाक़े मज़गाम कुलगाम में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इसमें हवन और पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। मकामी कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। मौजूदा हालात के चलते अक़ीदतमंदों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिली। बहुत कम अक़ीदतमंदों ने मंदिर में हाज़री दी। अमन खुशहाली के लिए दुआ की गई। हुई है उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया। लोग बिल्कुल डरे सहमे हुए हमारे लोग, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। नहीं तो यहाँ बड़ा रश होता था, फिर भी हम यहाँ के लोकल लोगों का साथ रहा, जिसकी वजह से हम यहाँ कुछ लोग आ गए। यहाँ हवन किया, हमने पूजा की। आम लोगों का सहयोग है हमारे साथ, खासकर सिक्योरिटी फोर्स का, पुलिस का, आर्मी का, यहाँ के लोगों का, आम बरादरी का हमें सहयोग मिला। यहाँ पर हर चीज़ का सहयोग मिला हमें यहाँ पर। तो क्या मैसेज रहेगी आपके आखिर पर? क्या मैं यही मैसेज दूँगा, यहाँ के लोगों का सुख शांति से रहो, आराम से रहो, हमें भी अपने साथ ले चलो, अपने साथ चलाओ, आगे भी ठीक ठाक रहो। हर एक के लिए हम ये दुआ। नामसाइद हालात के चलते आज माता त्रिपुर सुंदरी स्थापन देवसर में मेला खीर भवानी का त्यौहार और तकरीबात मनसूख की गई। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, ताहम मंदिर पर कोई हवन या पूजा पाठ नहीं की गई। साथ ही मीडिया और मकामी मुसलमानों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई थी। ताहम मकामी कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों ने सूरत हाल के चलते काफ़ी मायूसी और तशवीश का इजहार किया। उन्होंने भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया। यहाँ के जो मुसलमान हैं और यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, 10 दिन पहले से ही हम उनके वेलकम के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन आज जब हम यहाँ आए, आज इनका वो बड़ा दिन था, यहाँ पे आज हवन होना था, नहीं हुआ। लेकिन आज यहाँ देवसर के लोग बड़े मायूस हैं, क्योंकि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब था, एक भाईचारा था, तो इस भाईचारे को जख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आज दिल बहुत दुखी हुआ यहाँ जब हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पे 10-12 हजार पंडित होते थे, मुसलमान 10-12 हजार होते थे। यहाँ का जो ये पूरा इलाका था ये बर्रा होता था लोगों से, लेकिन आज बड़ी मायूसी हुई जब यहाँ पे पंडित नहीं थे। मेला खीर भवानी त्यौहार के चलते आज माता त्रिपुर सुंदरी वाका खनबरना दिवसर में भी मेला और त्यौहार का एहतमाम अमल में लाया जाना था, लेकिन नामसाइद हालात के चलते यहाँ पे आज जो है कोई भी तकरीब मुनक़्क़िद नहीं हुई। बिल्कुल कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो अंदर के मनाज़िर दिखाएं। यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली सा जो पूरा अस्ताफन है वो नज़र आ रहा है। कोई भी आज अक़ीदतमंद जो है यहाँ पे किसी भी अक़ीदतमंद ने हाज़िरी नहीं दी। उसके अलावा हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे ताकि किसी भी गड़बड़ी से निपटा जाए। नामसाइद हालात के चलते न सिर्फ ये मेला मनसूख किया गया, बल्कि आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया और ये जो अस्ताफन है ये खाली खाली नजर आ रहा है।
वादी में हालिया टारगेट किलिंग ने गांदरबल के तुलमुला में हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर मनाए जाने वाले सालाना माता खीर भवानी मेले को मुतासर किया है। मेले में कम तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत के बाद अक्सरियती बरादरी मायूसी का शिकार हुई। इस दौरान कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। देखिए ये रिपोर्ट। ये गांदरबल जिले का तुलमुला गांव है जो हर साल कश्मीरी पंडितों के जरिए मनाए जाने वाले मेला खीर भवानी के मौके पर एक त्योहार की शक्ल इख्तियार करता था, लेकिन इस मर्तबा अकीदतमंदों की कम तादाद देखी गई। अकीदतमंद हर साल मजहबी जोश खरोश के साथ माता खीर भवानी के नाम से मशहूर रागनिया देवी के मंदिर के दर्शन करते आ रहे हैं। अकीदतमंद नंगे पांव गुलाब की पंखुड़ियां लिए हुए और घंटियां बजाकर मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान दूध और खीर पेश की जाती है। वादी में हालिया टारगेट किलिंग ने अकीदतमंदों में खौफ पैदा किया, जिसकी वजह से माता खीर भवानी मेले में अकीदतमंदों की कम तादाद देखने को मिली। ताहम हस्बे रिवायत आरती और दीगर रसूम अंजाम दिए गए। मैं आज माता के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि यहाँ आज रश नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। टारगेट किलिंग की वजह से कश्मीरी पंडित यहाँ डरते हैं, इवन बाहर निकल घर से बाहर। मुझे 5-8 दिन हो गए यहाँ पर, मैं घर से बाहर नहीं गया क्योंकि इन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। लोग डर रहे हैं, मगर मैं तो माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, शांति हो जाए। सब हिंदू मुस्लिम जो भी पहले कश्मीरी पंडित यहाँ रहते थे उसी तरफ घर वापस आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो लोकल्स है वो खराब है। अगर इंडिविजुअली आप जिससे मिलेंगे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी बहुत प्यार करते हैं, हेल्प करते हैं। ये बेचारे भी डरते होंगे, हमें भी करना है, इनको भी तो मारते हैं। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इस वजह से कि पूरा माता का दरबार भरा हुआ होता था, तो आज खाली खाली सा लग रहा है। बड़ा दुख हो रहा है ये देख के, क्योंकि डर तो है ही मन में। अब जिस किसके के साथ भी कुछ हुआ है, कुछ ट्रेजेडी हुई है, तो उसके लिए तो बुरा ही है इधर आना। तो वो तो ये भी सोच रहा हो कि ये लोग गए कैसे। इस सालाना मेले को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत के तौर पर देखा जाता है। दोनों बिरादरियां मिलकर त्योहार मनाते थे, लेकिन मिलिटेंसी ने पंडित बरादरी को अपनी आबाई सरजमीन से माइग्रेशन पर मजबूर किया। हर साल मुस्लिम बरादरी अपने पंडित पड़ोसियों से मिलने के लिए इस त्योहार का इंतजार करती है। कश्मीरी मुसलमान मेले में न सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि इंतजामात में भी अपना रोल अदा करते हैं। मुसलमानों के साथ साथ सिख बरादरी भी अकीदतमंदों की कम तादाद से मायूस नजर आई। ईद होती है या दिवाली होती है या बैसाखी होती है, हम इसको मिलजुल कर मनाते हैं, मगर कुछ जो बाहर के अंसर आते हैं इस हमारे भाईचारे को खराब करते हैं। और ये ऐसा नहीं होता। खासकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जो एक्सरित वाले हैं उनको माइनॉरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और मैं मुसलमान भाइयों से फिर भी अपील करता हूँ कि इन पंडितों को यहाँ से भागने से काफ़ी नुकसान हुआ है, दोबारा ये नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुशी हो रही है कि जब हम वहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ कश्मीर में आते हैं और बहुत जज्बात से आते हैं, और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं और यहाँ जो उर्स है यहाँ पर इनका और इनकी बसात से यहाँ अमन अमान हो। हम यही चाहते हैं कि हम एक जो कश्मीरी ये अधूरा है, कश्मीरी पंडितों के बगैर ये कश्मीर अधूरा है, क्योंकि हमें ये नहीं लगता था कि ये कश्मीरी पंडित है, हम मुसलमान हैं, हम एक ही हैं। इसी दौरान जिला इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए थे। मंदिर के अंदर और अतराफ सिक्योरिटी का वसी बंदोबस्त किया गया था। जिला प्रशासन के द्वारा सारे प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लोगों के रुकने की सुविधा की गई है। हमारे सेक्रेटरीट एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर दुकानें भी जो लोकल लोग हैं यहाँ के तुलमुला के और आसपास के गांदरबल के, उनके द्वारा दुकानें लगाई गई हैं। सभी इंतज़ाम पुख्ता हैं और इन सभी इंतज़ामों को हमारी निगरानी के अंदर किया गया है और सारी चीज़ें ठीक हैं। मेले में शिरकत करने वाला हर शख्स पुरुमीद दिखाई दे रहा था कि अमन कायम होगा और आइंदा साल से फिर मेले की रौनकें लौट आएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट।
जम्मू में माता खीर भवानी मेले में कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। पंडितों ने जानीपुर के भवानी नगर और जगती माइग्रेंट टाउनशिप में माता के मंदिरों पर हाजिरी दी। इस मर्तबा काफी कम तादाद में अकीदतमंदों ने कश्मीर का रुख किया। ऐसे में जम्मू के इन मंदिरों में काफी रश देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने यहां पहुंचकर खसूसी इबादत में हिस्सा लिया। जम्मू में शदीद गर्मी के बावजूद अकीदतमंदों का जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने अमन खुशहाली के लिए खास दुआएं की। कश्मीर में हालात बेहतर होने के लिए भी दुआ की गई। कश्मीर में इस त्योहार को हम हर्षोल्लास से मनाया करते थे, क्योंकि इन 32 सालों की वजह से भी थोड़ा सा इसमें काफ़ी हद तक तो काफ़ी चेंजेस आ गई है। अदरवाइज 32 साल से ही कश्मीरी पंडित जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई कभी भी रुका नहीं ये सिलसिला। कश्मीर जाते रहे हम, और सिर्फ इस बार मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो टारगेट किलिंग्स की वजह से बहुत कम श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ आज देखने को लगा कि आज यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं। के लिए हम श्रीनगर इसलिए नहीं जा पाए, जो एक रोष भी है, ये सच्ची बात है कि जो टारगेटेड किलिंग्स हो गई और सिलेक्टिव किलिंग्स हो गई, जिसने भी हिंदुस्तान का परचम उठाया उसको मार दिया जाता है। और ख़ास तौर पर ये कश्मीरी पंडितों के साथ जो पिछले 3 महीने से वहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, उस वजह से हमारा ये रोष था, इसलिए हम वहाँ नहीं खीर भवानी गए। हमने देवी माँ से यही मांगा कि देवी माँ हमें वही हालात कर लीजिए जो 1988 के हालात थे, 99 के हालात थे, उसी तरह हम भाईचारे से रहे, उसी तरह वो कश्मीर की खूबसूरती ये गुलदस्ता बंधा रहे, और कश्मीरी पंडित अपने इज्जत के साथ और फख्र के साथ वहाँ पे रहे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वैसूख काजीगुंड में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमी ने आज मेला खीर भवानी के सिलसिले में किसी भी स्थापन पर हाजिरी देने से साफ इनकार किया। उन्होंने एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कॉलोनी में दस्तयाब रखे गए सरकारी ट्रांसपोर्ट का भी बायकॉट किया। उन्होंने कहा कि जब तक कि उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हम माता से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम आपके दरबार में नहीं आ पाए, नहीं तो इन 12 सालों में हम लोग बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। 2 दिन पहले ही हम लोग वहाँ पर पहुँचते थे माता के दरबार में। आज हमारी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम लोग को यहाँ पर ताला लगा के रखा हुआ, चाहे वीरवन हो, चाहे हाल हो, चाहे हमारा मटन हो, सारे कैंपों ने अभी मना कर दिया। कोई भी कश्मीरी पंडित जो भी एम्प्लॉय जो कश्मीर में रहते हैं वो लोग माता खीर भवानी नहीं जा रहे। सबसे बड़ी बात है जो ये त्रासदी चल रही है, जो कश्मीरी पंडितों का जो निर्मम हत्या हो रही है, उस हत्या के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग माता खीर भवानी नहीं जाएंगे। और सबसे दूसरी बात ये है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें अलो नहीं कर रही, क्योंकि जब मैं अपने कैंप में सेफ नहीं हूँ तो मैं माता खीर भवानी के यहाँ पर कहाँ से हूँ। माता सब पे अपनी कृपा बरकरार रखे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी, कांग्रेस के जी मीर, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, BJP के अशोक कौल समेत कई सियासी लीडरान ने आज तुलमुला का दौरा किया और कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। इन लीडरान ने मौजूदा सूरत हाल और इसके चलते अकीदतमंदों की कम आमद पर मायूसी का इजहार किया। वक्फ बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पे बैनर्स लगे हुए। हम वक्फ बोर्ड की तरफ से मैं खासकर सबों को वालिहाना इस्तकबाल करती हूँ, सरकार की तरफ से भी, और एज अ चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड की तरफ से सबों पंडित भाइयों को वालिहाना इस्तकबाल के लिए हम सुबह से ही यहाँ पे लगे हुए हैं। ये तो 1990 से ये बात है, उससे ज्यादा खौफ तो नहीं है। दुश्मनों की हमेशा यही चाल रही है कि हम कभी कश्मीर को अमन से रहने नहीं देंगे, कश्मीरी लोगों को अमन से नहीं रहने देंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने घरों को छोड़ दें और अपने घरों से भाग जाएं। ये तो मकसद ही नहीं है। दुश्मनों को हमें अपनी चाल में कामयाब नहीं होने देना है, हमें रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। हम अगर उनके लिए कोई परेशानी, हम उनके साथ हैं, हमें कोई परेशानी है, वो हमारे साथ रहेंगे, तभी तो ये कश्मीरियत जिंदा रहेगी। 8-9 महीनों में कितनी बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर में हुई है, कितना बड़ा टूरिस्ट का सीजन चल पड़ा है, हर रोज कितने बड़े टूरिस्ट यहाँ होते हैं। ये बौखलाहट है इन मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, ये बौखलाहट है। इनको लगता है ये क्या हो रहा है, इसलिए उस बौखलाहट में ये कर रहे हैं। हमको इसको सामना करना पड़ेगा और सामना करके सरकार इसको दबाए
ये हम सरकार को भी कह रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जो 90 का दौर था उस दौर से हम निकल गए। जहां हम बैठे हैं ये साया है हम सब के लिए। ये साया सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये साया मेरे भाई के लिए भी है, मेरी बहन के लिए। अकीदा अपनी जगह, कौन मस्जिद में जाए, कौन मंदिर में जाए, कौन किसी अकीदे का रहे, लेकिन ये जमीन, इस जमीन को बंटने नहीं देंगे, तकसीम होने नहीं देंगे। दीवार नफरत की हो, आज नहीं तो कल इस नफरत की दीवार को गिरना ही होगा। हमने लगातार कहा स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है और कुछ बेहतर इकदामात उठाने की जरूरत है। और जिस तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई आदमी तो जम्मू कश्मीर चला ही नहीं रहा इस वक्त। ये जो भी नॉन जम्मू कश्मीर वाले लाए जिनको जम्मू कश्मीर के कल्चर के बारे में पता नहीं, जो यहाँ का भाईचारा है उसके बारे में जानकारी नहीं, जो यहाँ का जोग्राफिया है उसके बारे में जानकारी नहीं, इसलिए गलत हाथों में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और जो दिल्ली से डिक्टेट कर रहे हैं, जिन्होंने कभी संजीदगी से जम्मू कश्मीर को तो समझा ही नहीं। वो तो सोचे कि हम अपना मतलब क्या कह सकते हैं उसको प्रचार कर करके शायद हालात ठीक करेंगे। हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा सालाना उर्स मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया गया। ज़िला गांदरबल के वांगट कंगन जैसे बाबा नगरी भी कहा जाता है में खुसूसी दुआ के साथ उर्स इख्ताम पजीर हुआ। अक़ीदतमंदों ने अमन, खुशहाली, इत्तेहाद और भाईचारे के लिए दुआएं की। पेश है जावेद भट्ट की रिपोर्ट। करते हुए लोग यहाँ पर आए हैं। बाबा नगरी में हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के 125वें उर्स में हजारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। 2 रोज़ा उर्स निहायती अक़ीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मियाँ बशीर अहमद मरहूम के फर्जंद सज्जादा नशीन मियाँ अल्ताफ अहमद की खुसूसी दुआ के साथ उर्स इख्तिताम पजीर हुआ। मारूफ मजहबी रहनुमा मियाँ बशीर अहमद का गुज़िश्ता बरस इंतकाल हुआ था। उर्स में शिरकत के लिए अंदरून व बैरून ड्यूटी से अक़ीदतमंद बाबा नगरी पहुंचे। दरगाह पर हाजिरी देने के साथ साथ शब खानी और दुरूद व अस्कार की महफिलों में भी शिरकत की। इज्तिमा से दीगर मजहबी रहनुमाओं के अलावा मियाँ अल्ताफ अहमद ने खिताब किया और हजरत बाबा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और खिदमत पर रोशनी डाली। उर्स शरीफ का हुक्म हमारे पीर मुर्शिद ने मेरे परदादा साहब हजरत जनाब बाबा जी साहब को दिया था कि तुम हर साल 26 जेठ को मेरा उर्स किया करो। तो अल्लाह ताला का फजल है कि उनके फरमाने के बाद हम यहाँ पे हमेशा इस उर्स शरीफ को करते रहे और यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद में हर साल इजाफा होता रहा। और कमाल की बात यह है कि हमारे पीर मुर्शिद का इंतकाल भी फिर 26 जेठ को ही हुआ। तो ये सारा कुछ जो है हम यहाँ पे ख़त्मात भी पढ़ते हैं, दुरूद भी, कुरान शरीफ की तिलावत होती है, उलमा भी हिस्सा लेते हैं। तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि इसका सवाब हमारे पीर मुर्शिद को मिले जिनके हुक्म से हमने ये उर्स शरीफ मेरे परदादा साहब ने मनाना शुरू किया। यूटी के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन राजौरी, पूंछ, किश्तवाड़, शोपियां, डोडा और उड़ी से अक़ीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। अक़ीदतमंदों ने अमन, खुशहाली और फिरकावाराना हम आहंगी के लिए दुआ की। ये अकीदत ही तो है कि सब कारोबार अपने मसरूफियात को छोड़कर ये पहाड़ी रास्ते क्रॉस करते हुए लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बिला रंग और नस्ल, मजहब व मिलत लोग यहाँ पर हाजिरी देते हैं। ये अल्लाह के वलियों का दरबार है, यहाँ पर फैज़ तकसीम होता है। भरोसा तो अल्लाह की जात पे है, फिर खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और फिर वो मुर्शिद जो जनाब बाबा जी साहब कई शरीफ वालों के ये आखिरी खलीफे हैं और बहुत बड़ी पाक है ये और हर आदमी की मुरादें पूरी होती हैं। जो भी दुआ मांगी गई है आज तक हर कोई इस चीज को देख रहा है कि वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। मियाँ अल्ताफ अहमद ने उर्स के मरासिम अंजाम दिए और तमाम उमूर की निगरानी की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। वादी कश्मीर के मज़ारों और मसाजिद में फ़न तामीर पर मबनी 2 किताबों का आज श्रीनगर में इजरा किया गया। ये किताबें
इंटैक ने तरतीब दी है। वीसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकील रुमशू और दीगर शख्सियात की मौजूदगी में रस्मी इजराई अंजाम दी गई। इनमें कश्मीर में काबिल एहतराम मज़ारात और मसाजिद के मुनफरिद रिवायती फ़न तामीर के बारे में फ़ोटो सीरीज़ और दस्तावेज़ात शामिल हैं। इस मौके पर एक मुबाहिसे के दौरान मुक़र्रिरीन ने कुछ मज़ारात की तंज़ुली पर तशवीश का इजहार किया। सारी चीज़ें एक किताब की शक्ल में आनी चाहिए, क्योंकि अब ये तस्लीम शुदा बात हुई है कि हमारी खानकाहों का जो आर्ट है ये इस्लामी फ़न का या फ़नून तामीर का एक बहुत अहम स्ट्रीम है। तो ये किताब अब छप के आ गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस किताब से इन ज़ियारात का जो तक़द्दुस है उसके साथ साथ इन ज़ियारात में जो कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के कारीगरों ने अपना हुनर, अपना फ़न एक ऑफरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है, वो इसमें उजागर हो जाए। ज़िला इंतज़ामिया बडगाम लगातार ये दावा कर रही है कि ज़िले में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए वो काफ़ी इक़दामात उठा रहे हैं, मगर बेशतर मकामात पर ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बडगाम का पखरपुरा इलाका इसकी एक मिसाल है। पखरपुरा में वाक़े ज़ियारत शरीफ पर रोज़ाना वादी भर से अक़ीदतमंद आते हैं, मगर इलाके में गंदगी के ढेर हैं। इलाके में गाड़ियों के लिए पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। बस अड्डे में भी काफ़ी कम जगह है और वो गंदगी से भरा पड़ा है। लोगों का कहना है कि अब बहुत कम सयाह यहाँ का रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो यहाँ ज़्यादा सयाह आएंगे और मकामी लोगों के लिए रोज़गार के ज़रिए फराहम होंगे। आती है वो 4 शिफ्ट से वापस जाती है, ना उनको पता है यहाँ सफाई है, इतनी बड़ी ज़ियारत है, हज़ारों में सियाह आते हैं। यहाँ की हालत देखकर सियाह भाग जाते हैं। उनको पार्किंग के लिए जगह नहीं है, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। यहाँ के जो अवकाफ है उन्होंने भी यहाँ तो गंदगी ही गंदगी मचा दी है। जहाँ भी जगह था वहाँ बंद कर दिया। ये जन सोमो ड्राइवर पान पान करान खंडरन पान डुनावान ये अड़स जन मौजूद गवर्नमेंट गुजारिश करान ये अड़स गई सफाई कर जन पखरपुरा टू चार शरीफ रोड तुम वो ये रोड कूता खस्त गोमुत करान गुजारिश अत रोडस करो कम से कम पेचिंग करो पे सारे गाड़ी ये अड़स मज तम पे टूरिस्ट वनकन आई मतलब तम थे 1 किलोमीटर दूरी स्टार्ट से मतलब जिला इंतजाम से युत वन दीतो कुछ जगह ताकि अड़ मज नबर तेल तो ये रोजान टूरिस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए अहम फैसला किया गया। काउंसिल ने पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए प्रमोशन की स्कीम को मंजूरी दे दी है। एलजी मनोज सिन्हा ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया है कि जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉई हैं उनको जो प्रमोशन एवेन्यूज नहीं थे, सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट करके उनको प्रमोशन देंगे। दूसरा, आज खीर भवानी का मेला भी है। अब तक 18,000 से ज़्यादा लोग उस मेले में हिस्सा ले चुके हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। वहाँ की डीडीसी चेयरमैन भी थी, श्रीनगर के मेयर भी थे, हमारे सलाहकार चीफ सेक्रेटरी भी गए थे। एक दुखद घटना हुई थी, एक शिक्षिका रजनी बाला की मौत हुई थी। हमने फैसला किया कि जिस विद्यालय में वो पढ़ाती थी उस विद्यालय का नाम उनके नाम से रख दिया जाएगा। उनके परिजनों से मैं मिला हूँ, उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी, उन्हें हम पूरा। भदरवा में लेवेंडर की फसल की कटाई शुरू की गई है। मरकजी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के लिए भदरवा के अपने दौरे के दौरान अलामती तौर पर खेतों में जामनी रंग के फूलों को काट कर फसल की कटाई के मौसम का आगाज किया। किसानों ने मरकजी हुकूमत खास तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा किया। किसानों के मुताबिक यहाँ पहली बार लेवेंडर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। हमारे तोई बागवान जी हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इन्होंने जो है तेल हम अभी निकालेंगे तो ये तेल खरीदेंगे और बाई हैंड पैसा भी देते हैं। तो हम लोगों का भी बहुत जोश है इसमें भी जो है और भी किसान जुड़ रहे हैं इस काम में। अभी फसल का टाइम है, अभी सबसे ज़्यादा जोश हम लोगों को यही है कि अभी जल्दी से जल्दी इस तेल को निकालें और बेचें। बाकी मुकाबले में तो बहुत फ़ायदा है इसमें, बाकी लगा तो उसमें फ़ायदा नहीं होता था, इंतज़ार करना पड़ता था, फसल बहुत कम बनती थी इसमें इंतज़ार में उतना जल्दी फसल बन जाती है। तो 2 फसल इसमें लग जाती हैं साल में, तो बहुत अच्छा फ़ायदा है हमें इसमें। इस साल बारिश भी नहीं हुई, लेकिन बारिश में भी बहुत हमें फ़ायदा मिला। अगर बारिश होती तो फिर ज़्यादा फसल निकलती हमारी। तो मसला यही हमारा कि रोड नहीं है।
आज की डेट में लेवेंडर का नाम हर एक की जबान पे उसकी मेन वजह यही है कि डॉक्टर दत्त सिंह खुद आए यहाँ पे, उन्हें हार्वेस्टिंग स्टार्ट की और ये आज आप देख रहे हो कैसे चल रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल योर बालतक करगिल में 2 रोज़ा फूड फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। तलबा ने मकामी ग़िज़ाओं की 25 अक़साम पेश की। कई अफराद ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि जंक फूड के बजाय रिवायती ग़िज़ाओं को फ़रोग़ देने की कोशिश की गई है। हमारे बच्चों की तरफ से जो लद्दाख रीजन में जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनका यहाँ पे ये अपना बच्चों ने अपना डिस्प्ले की, यहाँ पे वेरियस फूड्स का यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, जिसमें हमारे लद्दाख के रीजन में जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो सब यहाँ पे बच्चों ने डिस्प्ले किया गया। और इसके साथ गर्ल्स ने अपने अपने अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स भी डिस्प्ले किया गया। लद्दाख में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तमाम अहम मकामात पर ट्रैफिक पुलिस से निगरानी कर रही है। गुज़िश्ता बरस ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ला रही है। जिला लेह में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। फाइन कलेक्ट किया है। देन साथ में जो पिछला लाइक 3 दिन से जो हमने जो मैक्सिमम चालान आजकल जो स्पेशल ड्राइव की उस पर चल रहा है 761 चालान किया है, जिस पे करीब हमने ये फाइन जो कलेक्शन हुआ है उस पे करीब 28 लाख से ऊपर हुआ है। चक्काऊसा नारबल में टोंगिल मोडो सेकेंड डिस्ट्रिक्ट बडगाम चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इसका एहतमाम चिनार स्पोर्ट्स एकेडमी चक्काऊसा ने जम्मू कश्मीर टोंगिल मोडो एसोसिएशन के इश्तराक से किया। 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, उनमें लड़कियां भी शामिल हैं। डीडीसी नारबल रियाज अहमद मेहमान खुसूसी थे। पुलिस और मुख्तलिफ स्कूलों के अफसरान मौजूद थे। काफी तादाद में शायकीन भी मौजूद रहे। मुख्तलिफ शख्सियात ने बच्चों को खेल कूद में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मशवरा दिया। मैंने बहुत सारे मेडल जीते हैं, तो मतलब अपना हुनर दिखाने के लिए मैंने इस गेम में कंपटीशन लिया है। एज अ गर्ल मैं दिखाना चाह रही हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती है। लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये मार्शल आर्ट खेले ताकि खुद को बचा सके। आज पता चलता है कि आज लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती। आज ज़्यादातर ड्रग्स में होते हैं लड़के होते हैं, जैसे कि लड़कियाँ नहीं चल पाती है। अब जब लड़कियों के हाथ में होता है सेल्फ डिफेंस तो वो खुद कर सकती है। के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल यूथ पार्टी की जानिब से अनंतनाग के टाउन हॉल में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। पार्टी के कौमी सदर राजकुमार सिंह और दीगर ने इजलास में शिरकत की। राजकुमार ने जम्मू कश्मीर की मकामी सियासत को फरेब और धोखे पर मबनी करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के नामसाइद हालात के लिए यहाँ के माजी के हुक्मरान जिम्मेदार हैं। कई सियासी कारकुनों ने नेशनल यूथ पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, इसलिए मैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है उसमें मैं कुछ कभी कहना नहीं चाहूँगा। दूसरी बात है कि जो आगे वाला इलेक्शन है जिसको नेशनल पार्टी लड़ने जा रही है अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके, वो है विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के चुनाव में विधानसभा की कोई भूमिका 370 में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसलिए उस पर मैं अभी कोई कमेंट न करके मैं इतना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसके बाद जो है उस पर कोई कमेंट किया जा सकता है। बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक कवानी ने कहा कि सरकार की कारकर्दगी को अवामी हलकों तक पहुंचाने की गर्ज से पार्टी कारकुन अवाम के साथ जुड़े रहे हैं। इसकी एक कड़ी बीजेपी का पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है। अनंतनाग के रामपुरा इलाके में वानी ने इन बातों का इजहार किया। बीजेपी महिला मोर्चा लीडर रुमैसा रफीक भी मौजूद थी। मोदी हुकूमत के प्रोग्रामों और पॉलिसियों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। आगाह करना है कि हमारी सरकार ने 8 सालों में क्या कार्य किया है। यही आज हम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी को लोगों के बीच जाके इसको उजागर करते हैं, और जहाँ पे कोई कमी पेशी रही हो उसको हम मतलब चेक करके उनका हम बिल्कुल लाभ दे देंगे। उन जिनको इसका फ़ायदा नहीं मिला है कोशिश करेंगे कि उनको भी इसका फ़ायदा, इन योजनाओं का फ़ायदा मिले। निहालपुरा पटन में कायम फौज की 29 आरआर की जानिब से जज्बे खैर सगाली के तहत मंशियात मुखालिफ तामीर व तरक्की और दीगर मसाइल से मुतल्लिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ।
पटन इलाके के पंचू, सरपंचों, दीगर शख्सियात ने शिरकत की। माशरे में मंशियात की जानिब नौजवानों के बढ़ते रुझान की रोकथाम के लिए इस प्रोग्राम में जानकारी दी गई। कंपनी कमांडर मेजर अमित खुठारी ने लोगों से अपील की कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और मंशियात, दीगर जराइम से दूर रखें ताकि कश्मीर में अच्छे माशरे की तामीर हो सके। बच्चों के लिए खेलकूद के मुकाबले भी मुनक्किद हुए। जीतने वाले बच्चों को एजाजात से नवाजा गया। वहीं GRS एसोसिएशन गंदू की पेन डाउन हड़ताल जारी है। एसोसिएशन के सदर तालिब हुसैन ने कहा कि हुकूमत उनके जायज मुतालबात की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि यकीन दहानियों के बावजूद क्वालिफाइड GRS और दीगर अमले की मांगों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने जायज मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। उन्होंने LG से इस मसले पर इंसानी बुनियादों पर तवज्जो देने की अपील की है। पुंछ में माजूरीन के एसोसिएशन के नुमाइंदों ने महकमे समाजी बहबूद के अहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर में माजूरीन के बैठने का मुनासिब इंतजाम किया जाए और उनके दीगर मसाइल हल किए जाएं। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद फरीद ने कहा कि माजूरीन को सरकारी दफातर खास तौर पर बैंकों में परेशानियों का सामना रहता है। कुछ दफ्तरों में जब हमारा माजूर कोई शख्स जाता है उसको PN बाहर से जो है वो ये कह के वापस कर देता है कि अंदर ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर बिजी है। तो इस किस्म के मसाइल हमारे माजूरीन के साथ पेश आते हैं। हमें इज्जत से देखा जाए और ख़ास करके बैंकों में जहाँ पेंशन लेने माजूरीन या हमारे बुजुर्ग जाते हैं वहाँ पे एक अलग केबिन बनाना चाहिए ताकि वहाँ बैठकर उनके मसाइल जो है, उनकी पेंशन का मसला जो है वो अलग से मुलाजिम जो है उनको देखे। पशकुम करगिल में JK बैंक की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बैंक के क्लस्टर हेड इशफाक अहमद ने दीगर अहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। बैंक ने 2 एंटरप्राइज को कर्ज भी मंजूर किया है। इस मौके पर किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को तरकीब दी गई है। वहीं ऊडी के व्यापार मंडल के लिए पहली बार सदारती इंतखाबात मुनक्किद हुए। 2 उम्मीदवार हाजी मोहम्मद शफी और हाजी असदुल्लाह लून मैदान में थे। हाजी मोहम्मद शफी ताजिर फेडरेशन ऊडी के नए सदर मुंतखब हुए। SDM ऊडी ने जीतने वाले उम्मीदवार को हलफ दिलाया और सर्टिफिकेट फराहम की। हाजी शफी ने ताजिर बिरादरी को यकीन दिलाया कि वो उनकी फलाह बहबूद और बाजार की तरक्की के लिए काम करेंगे। NC के जिला सदर डॉक्टर सज्जाद शफी ने हाजी शफी को मुबारकबाद भी पेश की। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की मुनासबत से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग में सेमिनार कम जानकारी वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। जिला फूड सेफ्टी अफसर अनंतनाग शेख जमीर अहमद और दीगर मौजूद रहे। तालिबे इल्मों की खासी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। जंक फूड्स के मुज़र असरात और उससे परहेज करने की जरूरत को उजागर किया गया। जिस्मानी नशोनुमा के लिए खाने पीने की अच्छी आदत अपनाने पर जोर दिया गया। और वहीं पुंछ के पीर पंजाल के बिलकाक गांव में फौज ने बच्चों के लिए योगा का तरबियती कैंप मुनक्किद किया। बच्चों को तरबियत फराहम करने के साथ उन्हें योगा के फायदों से वाकिफ कराया गया। योगा डे के मौके पर यहां एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। कश्मीर के दूसरे हिस्सों के साथ साथ पुलवामा में भी दर्जे हरारत में इजाफा होने से रवा साल सेब और दीगर मेवाजात की पैदावार बेहतर है। सेब और बाकी मेवाजात बीमारियां से बच गए हैं। पैदावार में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि दर्जे हरारत में इजाफे के दौरान सिर्फ मेवा बागात में नमी रखनी लाजमी है। हमारे लिए ये मतलब अच्छा टेम्परेचर, कम ह्यूमिडिटी, ये हमारे फ्रूट के लिए फ़ायदेमंद है। कि इससे अगर आप देखेंगे इस साल अभी तक जो हमें फंगल डिजीज़ आती थी उन बहुत कम बागों में या बहुत कम अभी तक उसने हमारे फसल पे असरअंदाज हुई है। तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन साथ साथ में अगर हमारी ज़मीन में, मिट्टी में मॉइस्चर भी साथ साथ हो, चाहे वो बारिशों की से हो या इरिगेशन से, तो उससे चांसेस है कि हमारा फ्रूट ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का बनेगा।